Hi guys, welcome back to Gurpreet Reiki Zone. After a very long time, I am back again with my vlogs, and I'm so sorry I was out of vlogs for some few reasons because of office and I was not able to manage things. But now I am back, and today definitely I will be talking about a recipe that I am going to shoot. I'm going to make, and it is going to be a mutton curry. So a mutton curry is something that is being cooked in everybody's house, the people who love non-vegetarian, and basically the mutton. And so I'll show you what all ingredients are there. It's going to be a very simple recipe, but it's going to be very laziz also, and I'll show you the secret of it. I'll show you what kind of ingredients that I add to it. So here you go. So definitely to cook mutton, the recipe is definitely the mutton, and it is 1 kg mutton. I make sure that I take the very less bones of mutton. So this is 1 kg mutton, properly cut and washed. This is keema, and we actually do not get the कीमा डन फॉर हम लोग मशीन का बना हुआ कीमा नहीं लेते हैं. ये वो कीमा है जो भैया हाथ से पीट पीट कर इसको प्रॉपर कीमा बना देते हैं. अब मटन कीमा बनने के लिए रेडी है, एंड आई वाज सेइंग मटन करी. डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ मटन करी विद द कीमा, एंड दिस वाज द ट्विस्ट गाइस, दिस वाज अ सीक्रेट. So this is going to be the keema that I'm going to add into it. Plus I have taken onions. So this onion, these are three big size onions that I've taken, and I have taken ginger garlic paste. And now if I'll show you, I have got tomato puree which I have freshly grinded. And then the basic ingredients, guys, you always know कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ मैं बिल्कुल अपने basic ingredients use करती हूँ. Definitely the rock salt, नमक, it is red chili, it is haldi, turmeric, and it is definitely not garam masala. This is dhania powder and the methi powder. So these are going to be my very basic ingredients, and I'm going to cook this into a pressure cooker. So let me begin. As I've told you that I'm going to make it in a pressure cooker. So in a pressure cooker, I have added oil to it. It's like 1.5 measure of this karchi. Okay, so that's what I did. Now I'm going to add no khada masala, nothing at all. I'm only going to add cinnamon to it. And I've added half a teaspoon of cinnamon to my oil. Now you can actually, I wish I could make you feel the smell of the oil and the cinnamon right now. And now I am going to add the grinded onions to it. गाइज आप टीवी में तो देखते हो कि वो बस अनियंस के ऊपर ऐसे करते हैं और वो ग्राइंड हो जाता है. आई विश इफ द थिंग्स कुड हैव बिन दिस ईजी, बट आई हैड टू टेक सम टाइम टू ग्राइंड माई अनियंस. नाउ आई एम सिंपली गोइंग टू ऐड दीज अनियंस टू माई ऑयल. राइट, सो लेट मी जस्ट पुट सम वाटर and make sure my jar is clear. And now that I've added onion to it, so you can actually see I have not added any masala like a namak or anything abhi tak, but still you can see the color of the onions right now. You can actually see it. So now when it will start to get little more golden or little more brown, that's wherein I'm going to add salt and the other masalas to it. But after a minute's time I'm going to add the लहसुन अदरक का पेस्ट also. Guys, after few moments आप देख सकते हो कि ये मेरा मसाला बिना कुछ डाले इस कलर का हो गया है. और इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं बॉटल्स भर रही थी, बर्तन मांज रही थी, और आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि तुम्हारी मेड कहाँ चली गई जूली. तो वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई है, वो कल तक आ जाएगी. But in the meantime we have to do this. Now it's a time for me to add spices to it. So let me add. So guys, ये जो मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर आपको दिखाया था वो मैंने डाल दिया है. और जो भी खाना बनाता है उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, हर लेडीज़ को अंदाज़ा होता है. सो आई एम नो बडी टू टेल समबडी कि भैया आपको कितना डालना है. यू गाइज आर एक्सपीरियंस्ड इनफ. कोई ज़्यादा नमक खाता है, कोई ज़्यादा मिर्च खाता है, तो प्लीज़ आप अपने आप से उसमें ऐड कर लीजिए. और जो लोगों को नहीं पता है उनके लिए आई हैव एडेड 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट.
हाफ टी स्पून ऑफ लाल मिर्च, बिकॉज़ मेरे घर में लाल मिर्च मेरी मदर इन लॉ नहीं खाती हैं, और ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा टीस्पून ऑफ टर्मरिक, एंड वन से लाइक 1.5 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर. तो अभी आई विल लेट इट टू भूनो. अभी और थोड़ा भूने का कलर देगा तो मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी. बट अभी आई एम गोइंग टू ऐड दी कीमा टू इट, सो दैट कि कीमा भी इसमें साथ साथ इसमें भुन जाएगा. सो आई एम गोइंग टू ऐड कीमा टू इट, और कीमा को मैं साथ साथ स्टर करूँगी ताकि वो भुन जाए इसमें. मेरा जब तक मसाला भुनेगा साथ साथ मेरा कीमा भुनेगा. सो गाइस गिव मी अ मिनट, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम स्टीयरिंग, आई एम डूइंग एवरीथिंग. सो यू जस्ट अलाउ मी अ मिनट. मैं इसको थोड़ा अच्छे से स्टर करके फिर आपको दिखाती हूँ. जब आप देख रहे हो कि यहाँ साइडों से ऑयल छूटने लग गया है, ये देखिए ये साइडों से ऑयल छूट रहा है. नाउ दिस इज़ द टाइम दैट आई एम गोइंग टू ऐड दिस कसूरी मेथी टू इट, एंड आई एम गोइंग टू ऐड द मटन टू इट. और अभी भी मैंने इसमें टमेटोज़ नहीं डाले हैं. आई वॉन्ट माई, अरे इस पर वो आ गया. आई वॉन्ट कि इसमें मटन और ये सब इकट्ठे भूनता रहे, और जब तक मटन को अच्छे से राड़ लगी होती है ना गाइस, तो मटन बहुत अच्छा बनता है. तो अभी जब ये प्रॉपर भुन जाएगा टमेटोज़ ऐड करने से पहले, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शो इट टू यू गाइस. अब आप ये देखो कि इसमें मैं मटन ऐड कर चुकी हूँ, और अभी तो मटन भुन रहा है, ठीक है. तो अब नाउ व्हाट आई वांट टू शो इज़ कि मसाला पूरा है या नहीं. मसाला बिल्कुल पूरा है. अभी इसमें मैंने टमेटोज़ ऐड नहीं करे, और आप देखिए all of my pieces are completely coated with that gravy, with that masala, right? That's completely coated. ठीक है. तो अभी इसमें मैं टमेटोज़ ऐड करूँगी, विच इज़ गोइंग टू add on to the color to it. अभी इसमें प्रॉपर कलर आएगा सब मेरे इसमें जब मसाला भुन जाएगा. टमेटोज़ ऐड करूँगी ग्रेवी के लिए, और फाइनली अब इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें ऐड करनी है मुझे, टमेटो and the coriander leaves. That's the only thing that I'm going to add now. I will just be patient enough and will make sure कि ये पकना शुरू हो जाए. अभी ये देखिए साइड से देखो कैसे इसका मसाला तिरतिर हो रहा है, और ये प्रॉपर भुनने की कगार पे आ गया है. तो मैं इसको प्रॉपर भूनूंगी, और इसके अंदर मैं टमेटो एंड कोरिएंडर लीव्स ऐड करूँगी. बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ गाइज, प्लीज़ लिटिल बी मोर पेशेंट विद मी. आज एक बहुत स्पेशल डे है. आज मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है. मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगी, बिकॉज आई गेस दे डोंट लाइक इट टू बी देयर ऑन द कैमरा. सो वी हैव गिवन हिम अ सरप्राइज, एंड वी हैव ऑर्डर्ड अ केक फॉर हिम, एंड नाउ वी विल डेफिनेटली give him a surprise by cutting a cake. So please comment in my comment section for his birthday wishes. And now Amrit is lighting the candles. Dun, 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 dun. टी 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 टी. अपना हाथ बचा के अमृत बुझा दो, इससे जला लो. ये लो, आ जाओ. So that's how it is going to be. So guys, the celebration begins. Happy Birthday to you. Happy birthday. Here a knife. Here a knife. और गाइज़ ये हमारे में एक रिचुअल है कि सारी कैंडल्स नहीं ब्लो आउट करते हैं, तो एक रख लेते हैं जो कि अपने आप अपने टाइम से ब्लो आउट होती है. और गाइज़ यहाँ मैं अपनी सब्ज़ी छोड़ गई थी बनने के लिए, और आप देखो कितना अमेजिंग टेक्सचर आया हुआ और कितना अमेजिंग अभी भुन रहा है. और इसमें मैंने अभी तक टमेटोज़ ऐड नहीं करे हैं. सो येस गाइज़, नाउ दिस इज़ द टाइम दैट आई एम गोइंग टू ऐड टमेटोज़ टू इट. सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट. और आप देखो कितने अच्छे से ये मसाला पूरा भून चुका है. सो आई एम नाउ गोइंग टू ऐड टमेटोज़ टू इट, ताकि अभी मेरा मसाला टमेटोज़ के साथ भुने. सिंस आई एम गोइंग टू डेफिनेटली मेक दिस इनटू अ कुकर, बट उससे पहले जब तक आपके मटन को अच्छे से राड़ ना लगी हो, पंजाबी में वर्ड बोलते हैं राड़, और हिंदी में मेरे ख्याल से बोलते हैं कि जब तक ये अच्छे से भुना ना हो, इसको अच्छे से इसकी भुनावट ना हुई हो इसके मसाले की, तब तक हम इसका ढक्कन नहीं लगाएंगे. प्रॉपर ये जब मसाला भुन जाएगा, प्रॉपर इसका ऑयल छूट जाएगा, लास्ट में धनिया ऐड कर पानी डालकर, तो मैं इसको
सीटियाँ दिलाऊंगी। और मैं आपको आपके कुकर पे डिपेंड करता है गाइस, और मटन पे डिपेंड करता है कि कितना छोटा मटन है, कितना बड़ा मटन है, कैसा मटन है, कितना क्वांटिटी है। और ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपके चावल किसी के चावल उसी कुकर में 2 सीटी में बनते हैं, किसी के 1 सीटी में बनते हैं। तो आई थिंक मैं इसको इस कुकर के अंदर, क्योंकि मेरे इस कुकर में मेरे चावल 2 सीटी में बनते हैं, तो इसमें आई एम गोइंग टू पुट 4 whistles एज ऑफ नाउ। और फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी, जब कुकर बंद करूंगी तब भी दिखाऊंगी कि किस स्टेज पर मैंने इसका कुकर का लिड लगाया है। अब देखो कितना अमेजिंगली ये भुन रहा है, और अभी भी प्रॉपर भुना नहीं है, अभी भी ये भुन रहा है। अरे कितना ज़्यादा इसमें वो है, अभी भी ये भुन रहा है। और अब आप पूछोगे कि बार बार कुकर क्यों चेंज हो रहा है, तो मैंने ना पहले ट्राई किया था, मैंने सोचा कि यार इतना मैं इसमें ना थोड़ा मुझे अंदर दिखाने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना वेसल चेंज करके छोटा कुकर ले लूँ। बट फिर उसके बाद मैंने देखा यार उस कुकर में तो क्वांटिटी कम पड़ रही है, तो फिर आई हैड टू टर्न इट बैक टू माई बड़ा वाला कुकर। बट दैट्स ओके, आई विल डेफिनेटली ट्राई। और अब आप इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखो ये कितने अच्छे से ये अब इसका जो मसाला है, अब जो इसका मसाला है ये प्रॉपर भुन रहा है। ये देखो प्रॉपर इसका मसाला नीचे से लेकर यहाँ तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो गाइस, प्रॉपर ऑयल छोड़ रहा है ये मसाला हर जगह से। बस अब इसमें हम डालेंगे धनिया लीव्स, जो कि डंडियाँ, मैं इस टाइम पे जब इसको भून रही होती हूँ तब मैं डालती हूँ धनिया की डंडियाँ, और जब फाइनल हो जाता है तब मैं बाद में डालती हूँ इसमें पत्तियाँ। तो गाइस आप देखो कितना अमेजिंग टेक्सचर आया हुआ है मटन का, कितना अमेजिंग टेक्सचर है। तो गाइस नाउ दिस इज़ द फाइनल स्टेज, जिस पे कि मैं अब वाटर ऐड करने लगी हूँ। वाटर मैं पहले थोड़ा सा ऐड करूँगी, और ये वाटर वही है जो मैंने पुराने कुकर को खाली करने वक्त किया था। सो आई एम गोइंग टू ऐड थोड़ा सा वाटर पहले, ताकि ये जो मसाला है मैं उसको और सेटल कर सकूँ। तो आपको ना एक्चुअली दिख जाएगा कि मसाला कितने अच्छे से भुना है। ये देखो, ये देखिए कितने अच्छे से भुना हुआ है मसाला। एंड विद इन नो टाइम, विद इन अ मिनट और सो, ये अभी इसमें भी ऑयल छोड़ने लग जाएगा। और जैसे ही मसाला सेटल हो जाएगा ना इसमें, मैं दोबारा से इसमें पानी डाल दूँगी। और अब मैंने जब कहा था कि जब मैं इसमें पानी डालूँगी आई एम गोइंग टू ऐड धनिया स्टेम्स टू इट। सो आई एडेड धनिया स्टेम्स। और ये ना धनिया स्टेम्स इसलिए डालते हैं क्योंकि ना ये अपना अलग ही फ्लेवर देता है। डालते ही धनिया स्टेम्स गाइस, नाउ आई कैन स्मेल दिस मटन, और बिलीव मी बहुत ही अमेजिंग इसकी खुशबू आ रही है। सी, और मेरी हालत देखो गाइस, पसीने इतने टपक रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि एग्जॉस्ट चल रहा है बट फिर भी, बट दैट्स ओके। जिस काम की मेहनत में पसीना और कपड़े गंदे ना होना, वो काम अच्छे से होता भी नहीं है। सो बिलीव मी, आई विश आई कुड हैव गिवन दिस a bowl to you to taste, बट आई होप आप मेरे वीडियो के ज़रिए ही इसको चख लीजिए। एंड जो एक्सपर्ट्स हैं खाना बनाने में, उनको डेफिनेटली ये पता चल जाएगा कि द वे इट इज़ मेड, जैसा ये भुन रहा है, यू कैन एक्चुअली फील हाउ रेलिशिंग इट इज़ गोइंग टू बी। सो आई विल डेफिनेटली शो यू another lot of water that I'm going to add, बट अभी भी मैं आपको दिखाती पानी डालती कितनी अमेजिंग इसका शक्ल आ चुकी है। देखो, तो गाइज एट दिस स्टेज आई एम गोइंग टू पुट अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, और अब मैं इसको विसल के लिए लगा दूँगी। सिंस मैंने आपको दूसरा कुकर बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आई एम गोइंग टू पुट 4 whistles, बट नाउ दैट आई हैव चेंज्ड माई कुकर, सो आई एम ओनली गोइंग टू मेक श्योर दैट इट गेट्स 2 whistles, बिकॉज मेरे इसमें चावल 1 विसल में बन जाते हैं। तो मैं इस मटन को इतना भून चुकी हूँ कि मुझे अब इसमें और ज़्यादा विसल की ज़रूरत नहीं है। ओनली 2 whistles एंड द मटन विल डू गुड। सो गाइज यू कैन सी एक्चुअली कि कितने अच्छे से मसाला ये पूरा भुन चुका है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड वाटर टू इट, लिटिल बिट ऑफ वाटर, क्योंकि ये कीमा मटन है तो ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे इसमें। सो यस, ये पानी भी मैंने इसलिए ऐड करा है ताकि इसका जो मसाला है इनका अच्छे से ये बन जाए। मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के गाइस। आई एम नॉट श्योर व्हाट अबाउट यू, बट दैट्स हाउ इट इज़
फॉर मी। और मैं ना कोशिश करती रहती हूँ कि जब भी मैं ये बनाऊँ ना, मैं साथ के साथ साइडों से भी मसाला नीचे कर दूँ, सो दैट कि क्या है ना कि साइडों का मसाला फिर सारा सूख जाता है और वो वेस्ट जाता है। सो अब नाउ आई एम गोइंग टू ऐड लिड टू इट, एंड आफ्टर 2 whistles आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। आ गई, दूसरी भी आ गई गाइस। एंड गाइस आई टेल यू व्हाट, आई डोंट नो इफ यू नो इट, दिस इज़ नोन एज सलामी, और ये मेरी बेस्ट है। और दिस इज़ ब्लैक पेपर सलामी, मुझे बहुत अमेजिंग लगती है। बीट चिकन सलामी, बीट मटन सलामी, बट मटन सलामी इतनी नहीं, बट चिकन सलामी आई लव इट। एंड मैं बस यही खाऊंगी रात को, एंड दैट्स इट। अब टाइम है कुकर खोल के चेक करने का कि कैसा बना है हमारा मटन। सो वेट, आई एम गोइंग टू ओपन इट। सिंस मैं एक ही हाथ से शूट कर रही हूँ गाइस, सो लुक एट द कलर ऑफ माई मटन। देखो गाइस, अमेजिंग बना यार, दिस इज़ वेरी अमेजिंग। मेरे फ़ोन की बैटरी भी कम है और इस वजह से ना मैं फ्लैश लाइट ऑन नहीं कर पा रही हूँ। सो वेट गाइस, सो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द मटन, you can actually see it. तू है तो मुझे अब और क्या चाहिए, तू है तो मुझे अब और क्या चाहिए। And this is ready to serve. So guys, back again after the dinner, and if I'll tell you what the time is, it is 12 o'clock and we are all ready and going. There's a surprise that we not basically a surprise, but then there is something important that we are going for, and nothing to worry about. Continue on the vlog and you'll get to know where are we going. So stay tuned guys. The surprise is that we have come in night to Gurdwara Seesganj Sahib. सो गाइज़ अब बज गए हैं सुबह के 5:45 और आई एम श्योर आपको कैमरा में कुछ नहीं दिख रहा होगा। येस, आई वुड लाइक टू एंड माई व्लॉग, और थैंक यू सो मच। आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कीप सपोर्टिंग मी the way that you have done it in the past. I am starting my vlogs again. I will try to put something exciting in my vlogs apart from food vlogs or anything else. So keep commenting, keep giving me suggestions as into what you want to see. And बहुत नींद आ रही है यार, 6 बज गए हैं सुबह के, पूरी रात नहीं सोए हम। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब गए थे, वहाँ से फ्री हुए, फिर हम गए ISBT आनंद विहार बस अड्डा। वहाँ से आज जूली ने आना था और जूली को पिकअप किया, और पिकअप करने के बाद हम सीधा घर आए हैं। बट आज हमारे को बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा जी के सीसगंज साहिब गुरुद्वारे में, और 6 बज चुके हैं। सीरियसली बहुत नींद आ रही है। सो ओवर एंड आउट, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नए और एक अच्छे से व्लॉग में। थैंक यू, बाय।